को पढ़ने जा रहे हैं। ब्रदर हैगन के द्वारा लिखी हुई किताब है और किताब का नाम है प्लान, पर्पसेस एंड परस्यूट्स, मतलब योजनाएं, उद्देश्य और उनका अनुसरण करना। पहला अध्याय है विजिटेशन, मुलाकात। फिलिपियंस उसका तीसरा अध्याय 12 से 14 आयत। फिलिपियन चैप्टर 3 वर्स 12 to 14। अगर आप हिंदी में पढ़ लें, इंग्लिश if you want to read. Not as though I had already attained, either were already perfect, mature or full grown, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Or the next reference is 1 Corinthians chapter 2 verse 1 to 5. पहला करंथियों उसकी 1 से 5 है। आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, and I'm reading in English. And I, brethren, when I come to you, came not with excellence of speech or of a wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. और ये पहला करंथियों 2 की 1 से 5, 1 Corinthians chapter 2 verse 1 to 5 था। Several days before our annual camp meeting in 1987, मैंने फिर से दोहराऊंगा, मैं ब्रदर हैगन की किताब से पढ़ रहा हूँ। ब्रदर हैगन इस बात को बोल रहे हैं कि 1987 में हमारी कैंप, जो सालाना कैंप मीटिंग होती है, उससे कई दिन पहले I had a visitation from the Lord. प्रभु की ओर से प्रभु ने मुझसे एक मुलाकात की। प्रभु जब मुझे मिलने आया, as I relate that visitation, जैसे मैं उस मुलाकात का जिक्र करता हूँ, I share it with you in weakness and in a reverence, in much trembling, because of some of God's power and His presence. मैं अपनी कमजोरियों और भय के साथ कांपते हुए उस परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ और उपस्थिति का जिक्र कर रहा हूँ। पौलुस ने कहा, पहला Corinthians chapter 2 verse 3, 1 Corinthians chapter 2 verse 3, I was with you in weakness and in fear. मैं तुम्हारे साथ कमजोरी में और भय में था। Of course, that did not mean he was afraid like you would be afraid of a rattlesnake or a tornado. इसका अर्थ कतई यह नहीं है कि वह जैसे आप किसी सांप से या किसी तूफान से डर जाएं, वैसा डरा हुआ था। Paul meant that he had a godly fear. Paul उसके कहने का अर्थ था कि वह ईश्वरीय भय था, and awe, उसका आदर था, and a reverence for God, और परमेश्वर के लिए एक आदर था। It is with that same reverence that I know relate to you, that of somebody visitation. उसी प्रकार के भय और आदर के साथ मैं इस अद्भुत दर्शन या मुलाकात को आपको बताना चाहता हूँ। I had from the Lord the week before our camp meeting, जो मुझे हमारी कैंप मीटिंग से 1 सप्ताह पहले हुआ। फर्स्ट, सबसे पहले, let me explain that I do most of my praying at night. मुझे आपको ये बताने दीजिए कि मैं अपनी ज़्यादातर प्रार्थनाएं रात में करता हूँ। Most of my life I have been a night person. मैं अपनी जीवन में ज़्यादातर रात का व्यक्ति रहा हूँ। I am older now. अब थोड़ा उम्र बढ़ गई है, and I have changed some, और थोड़ा सा बदल गया हूँ। But I have always been more alert at midnight than at any other of the day. पर मैं हमेशा ही रात में ज़्यादा
सचेत रहता हूँ दिन के किसी भी घंटे की बजाय। That is why I used to do all of my studying at night. इसीलिए मैं अपने सारे अध्ययन रात को किया करता था। Many times I have studied and read all night long. बहुत बार मैंने अपने अध्ययन को किया और पूरी रात करता रहा और पूरी रात पढ़ता रहा। I got in the habit of praying during the night when I was bedfast in 1933 and 1934. मैं इस रात में प्रार्थना करने की आदत को तब आ गया जब मैं 1933 और 1934 में अपने बिस्तर से लगा हुआ था। I could not pray any other way except in a bed. और बिस्तर के अलावा मैं और किसी तरीके से प्रार्थना नहीं कर सकता था because I was a bed fast, क्योंकि मैं बिस्तर से लगा हुआ था, tied to that bed, जुड़ा हुआ था उस बिस्तर से बीमारी के कारण। I could not get up and walk, मैं उठ के चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था और चल नहीं सकता था। I remember one night in a particular, और मुझे याद है एक रात विशेष रीति से, I prayed all night long, मैंने सारी रात प्रार्थना की। I never slept at all, मैं बिल्कुल भी नहीं सोया। I just prayed, मैंने सिर्फ प्रार्थना की। Several nights I prayed nearly all night long. कई रातें मैंने लगभग सारी रात प्रार्थना की है। Many nights I would pray an hour or two before I went to sleep. बहुत रातों को मैं सोने से पहले लगभग 1 या 2 घंटे प्रार्थना करता। I always looked forward to night time. मैं हमेशा ही रात के समय की ओर देखता रहता था, इंतजार करता था। When everyone else was in bed and things got quiet, कि जब सब कोई बिस्तर पे चला जाए और सब कुछ शांत हो जाए, so that I could pray, ताकि मैं प्रार्थना कर पाऊँ। In the daytime, someone always had to sit in the room with me. दिन के समय किसी न किसी को मेरे साथ हमेशा रहना पड़ता था या बैठना पड़ता था। That went on for many months because they thought I was going at any moment. तो यह कई महीने तक चलता रहा क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी पल मर सकता हूँ, जो चला जाऊँगा, मतलब मर के चला जाऊँगा। So they would only allow one person in the room at a time. So एक समय में एक ही व्यक्ति को एक कमरे में रहने की अनुमति देते थे। And that person had to sit with me, और उस व्यक्ति को मेरे साथ बैठना पड़ता था। I got into the habit of praying at night. So मैं रात में प्रार्थना करने की आदत में आ गया। When I could be alone, जब मैं अकेला हो सकूं। And I guess I have just followed that through the years. और मुझे अंदाज़ा लगाता हूँ कि इसी कारण मैं इस सारे सालों में ऐसा ही करता गया, मेरी आदत बन गई और सारी साल मैं ऐसा ही करता रहा, सारे वर्षों में। Many times God has spoken to me in the night. बहुत बार परमेश्वर ने मुझसे रात में बात की है। On July 16, जुलाई 16, the Thursday morning preceding our annual camp meeting, हमारी रविवार की सभा जो सालाना सभा थी कैंप मीटिंग की, नॉट रविवार, गुरुवार की, आई वॉज अवेकन्ड। और उससे मतलब वीरवार को जो 16 जुलाई था, उससे सभा से पहले जो वीरवार था, उस दिन आई वॉज अवेकन्ड, कहते मैं जागा हुआ था, मैं जाग गया। एंड आई कुड नॉट गेट बैक टू स्लीप, और फिर मैं दोबारा वापस सो ना सका। सो आई बिगन टू प्रे इन द स्पिरिट। सो मैंने आत्मा में प्रार्थना करनी शुरू कर दी। एज आई प्रेड इन द स्पिरिट इन अदर टंग्स, जैसे मैंने आत्मा में अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू की, आई केप्ट सेइंग दीज वर्ड्स ओवर इन इंग्लिश, और मैं अंग्रेजी भाषा में ये शब्दों को बोलता गया। प्लान्स, पर्पसेस, योजनाएं, उद्देश्य। प्लान्स एंड पर्पसेस, योजनाएं और उद्देश्य। आई सेड टू द लॉर्ड, मैंने प्रभु से कहा, लॉर्ड दैट इज नॉट ऑल ऑफ दैट, यही सब कुछ नहीं है। आई नो इट इज नॉट, मैं जानता हूं इतना ही नहीं है। एंड आई केप्ट ऑन प्रेइंग इन टंग्स, और पर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता गया। फाइनली, अंत में, आई प्रेड आउट इन इंग्लिश, अंत में मैंने अंग्रेजी में प्रार्थना की। प्लान्स, पर्पस एंड परस्यूट्स, योजनाएं, उद्देश्य और उनके अनुसरण। प्लान्स, पर्पस एंड परस्यूट्स, योजनाएं, उद्देश्य और उनके अनुसरण।
I was caught up into the spirit, और मैं आत्मा में ऊपर उठाया गया, and I began to see and understand man's plan as they related to God's plan. तब मैं मनुष्य की योजनाओं को समझना और देखना शुरू किया जब उन योजनाओं को परमेश्वर की योजनाओं के साथ जोड़ा गया। मैं मनुष्य की योजना जो परमेश्वर की योजना से जोड़ी जाती है उसको देखना और समझना शुरू किया। I could see that many times men had plans that were good, और मैंने देखा कि बहुत बार मनुष्य की योजनाएं होती हैं जो अच्छी हैं, even thoroughly scripture, और पूरी तरह वचनात्मक हैं, वचन के अनुसार हैं, but they are not of God's plan, पर वह परमेश्वर की योजनाएं नहीं हैं। This experiences was unusual, और यह अनुभव बहुत ही असामान्य था, and it lasted almost 3 hours, और यह लगभग 3 घंटे तक चला। Part of it was revelation and part of it was vision. इसका कुछ भाग प्रकाशन था और कुछ भाग दर्शन था। It began about 3 o'clock in the morning, और यह लगभग सुबह के 3 बजे शुरू हुआ। And the last time I looked at the clock, और जब मैंने आखिरी बार घड़ी को देखा, it was almost 6 o'clock, तो लगभग 6 बज चुके थे। When I was caught up into the spirit to where Jesus was standing, जब मैं आत्मा में वहाँ ऊपर उठाया या पकड़ा गया जहाँ पे यीशु मसीह खड़ा था, it seemed that Jesus and I were standing up a little higher than the ceiling of Tulsa Convention Center. कहते हैं ऐसा लगता था जैसे कि यीशु और मैं तुलसा कन्वेंशन सेंटर की छत के ऊपर थोड़ा सा ऊपर खड़े थे, छत से थोड़ा सा ऊपर खड़े थे। Looking down on our camp meeting services, which were scheduled to begin there the following Monday. और उन सभाओं को, कैंप मीटिंग की सभाओं को देख रहे थे जो आने वाले सोमवार से शुरू होने वाली थी। I saw the Monday night service unfold before us. मैंने सोमवार की रात की सभा को मेरे सामने खुलते हुए देखा, होते हुए देखा। And I saw many things that would happen in other services throughout the week. और मैंने यह भी देखा कि पूरे सप्ताह में बाकी सभाओं में भी क्या क्या चीज़ें होंगी, उन सब चीज़ों को भी मैंने देखा। उनमें बहुत ही चीज़ों को देखा। Jesus was the narrator and he explained what was taking place as I looked on. यीशु मसीह इन सभाओं के विषय में मुझे बोल रहा था, बता रहा था और उनका वर्णन कर रहा था कि उस स्थान में क्या क्या होगा। जब मैं उन मीटिंगों की ओर देख रहा था, जैसा मैं देख रहा था तो मुझे बता रहा था और समझा रहा था कि इन सभाओं में क्या क्या होने वाला है। As I stood there with Jesus, जैसे मैं यीशु मसीह के साथ वहाँ खड़ा हुआ, Jesus narrating and explaining the things that were happening in the services. यीशु मसीह जैसे बता रहा और समझा रहा था उन चीज़ों के बारे में जो इस सभाओं में होने वाली थी। I saw that this camp meeting would be one of the most monumental and momentous camp meetings we have ever had. तो मैंने देखा कि यह कैंप मीटिंग सबसे याददाश्त और भव्य सभा होने वाली है, बहुत ही महिमा में अद्भुत सभा होने वाली है और यादगारी भी, याददाश्त वाली सभा रहेगी। I saw that the results of this camp meeting would be forthcoming for long time. और मैंने यह भी देखा कि इस कैंप मीटिंग के जो नतीजे हैं वह बड़े लंबे समय तक रहेंगे, बहुत ही लंबे समय तक रहेंगे इसके नतीजे। As I was standing up there with Jesus, seeing all this unfold, जैसे मैं यीशु मसीह के साथ उन सब चीज़ों को होते देख रहा था, खड़ा हुआ देख रहा था, I asked him, मैंने उससे पूछा, Lord, why did not you visit me far enough in advance so we could have advertised to the people that this camp meeting was going to be unusual? तो मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु जी, आपने मुझे इतना ज़्यादा पहले क्यों नहीं बताया?
इस सभा के बारे में कि क्या क्या होने वाला है, ताकि हम इसकी अच्छे से एडवर्टाइज करते और लोगों को बताते कि यह सभा बहुत ही अद्भुत होगी। मोर पीपल वुड हैव कम इफ दे वुड हैव नोन दैट। तब ज़्यादा लोग आ सकते थे यदि वे इस बात को जानते होते। जीसस आंसर्ड, यीशु ने उत्तर दिया, द रीजन आई डिड नॉट, यीशु मसीह ने कहा जिस कारण मैं तुझे नहीं बताया पहले, बिकॉज देन द क्यूरियोसिटी ऑफ सीकर्स एंड दोज सीकिंग द सेंसेशनल वुड हैव कम। तब वो लोग जो उत्सुक रहते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए कि क्या हुआ, कैसा हुआ, बड़ी बड़ी सेंसेशनल जो अद्भुतकर हैं, जो इसकी खोज में रहते हैं और उत्सुक रहते हैं इन चीज़ों को बारे में, तब वो लोग आ गए होते। आई जस्ट वॉन्टेड दोज पीपल टू बी हियर दैट आई हैड डायरेक्टेड टू कम। मैं सिर्फ उन लोगों को इस मीटिंग में चाहता था जिन्हें मैंने आने की गवाही की है कि वही आए, जिन्हें मैंने दिशा दी है, निर्देश दिया है इस मीटिंग में आने का। सो आप समझ सकते हैं कि हर कोई हर सभा में परमेश्वर की आत्मा की गवाही से नहीं जाता। कई तो सिर्फ ये जांचने जाते हैं कि वहाँ हो क्या रहा है, दल के देखते हैं। सैड टू से, ये कहते हुए दुख होता है, इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट देयर आर दोज पीपल हु आर जस्ट सीकिंग द सेंसेशनल, कि मसीह की देह में बहुत लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ अजीब अजीब जो कार्य हैं उन्हीं को देखने जाते हैं, उनकी खोज में रहते हैं। सेंसेशनल मतलब कुछ अद्भुत, छिन्न चमत्कार वाले, सनसनी या सनसनी बातों को खोजने जाते हैं। दे आर ऑलवेज सीकिंग आफ्टर एनीथिंग दैट इज न्यू, वह हमेशा ही ऐसी बात की खोज में रहते हैं कि कुछ नया मिल जाए। दोज पीपल वुड हैव कम विद द रॉन्ग पर्पज, वह लोग गलत मकसद के साथ आ गए होते। दे वुड बी द वंस टू से, और वे ऐसा कहने वाले होते, लेट्स गो हियर ब्रदर हैगन, आइए चलें भाई हैगन को सुने, ही हैड अनदर विजिटेशन, उसको एक और मुलाकात हुई है। लेट्स गो हियर अबाउट इट, चलो उसको सुनते हैं, चल के इसके बारे में सुनते हैं। दे आर ऑल्सो यूजली द वंस हु टेक वट यू से एंड ट्विस्ट इट, उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो इसे लेते हैं और फिर तोड़ मरोड़ कर कहते हैं। समझे की बात, तोड़ मरोड़ कर। सम पीपल पिक अप ऑन वन पार्ट ऑफ वट यू से, जो आप कहते हैं कुछ लोग उसमें से एक भाग कुछ चुन लेते हैं, उठा लेते हैं, ट्विस्ट इट, उसे मरोड़ते हैं, गो ऑफ इनटू एक्सेस एंड एरर, तब फिर वह उसमें बहुत आगे बढ़ जाते हैं और गलती करते हैं, एंड क्रिएट कंफ्यूजन इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और मसीह की देह में गड़बड़ी ले आते हैं। देयर विल प्रोबेबली बी दोज हु विल रीड दिस बुक एंड टेक व्हाट आई एम सेइंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड गेट ऑफ इनटू एरर, और जो लोग हो सकता है इस किताब को भी पढ़ने वाले कुछ लोग होंगे कि जो मैं कह रहा हूं उसको संदर्भ से बाहर ले लें और फिर उसको गलत कर दें, उसमें गड़बड़ी डाल दें। However, misguided people prone to error should not keep us from flowing with what is biblical and right. चाहे कैसा भी क्यों ना हो, जो लोग गलत दिशा में चलने वाले हैं वह कितनी भी गलतियां क्यों ना करें, हम लोगों को इसके कारण परमेश्वर के वचन बाइबल और जो सही है उसके साथ बहना रुकना नहीं है। ये हमें रोक देना नहीं चाहिए कि ये लोग जी उठा के गलत कर देते हैं इसलिए हमें नहीं रुकना है। It should not keep us from flowing with what the Holy Spirit is wanting us to teach the body of Christ in this hour. ये बात हमें पवित्र आत्मा जो इस समय मसीह की देह को सिखाना चाहता है उसके साथ बहने से रोक नहीं देना चाहिए। I believe that those who have ears to hear will hear what the Spirit is saying to the church in this hour. मैं विश्वास करता हूँ कि जिनके पास सुनने के कान हैं वह सुनेंगे कि आत्मा इस घंटे में या इस घड़ी में कलीसियाओं से क्या कहता है, and will cooperate with him to help usher in the move of God. और वह इस बात में सहयोग करेंगे कि परमेश्वर की आत्मा का चलन, परमेश्वर का चलन
को लेके आए, ऑल ऑफ आवर हार्ट्स सो अर्नेस्टली, जिसकी हम सब लोग अपने दिल से इच्छा कर रहे हैं या खोज कर रहे हैं, अर्नेस्टली डिजायरिंग, मतलब खोज करते हैं हम अपने हृदय से जिस परमेश्वर के चलन की, तो उसके साथ सहयोग करेंगे। A new beginning, एक नई शुरुआत। Only 2 or 3 times in the many years of my ministry, मेरी बहुत सालों की सेवकाई में सिर्फ 2 या 3 बार have I had an experience like this one, which took place prior to the camp meetings in 87, कि मेरे पास सिर्फ 2 या 3 बार ही, मेरी पूरे इतने साल की सेवकाई में सिर्फ 2 या 3 बार यह अनुभव मुझे हुआ है, जैसा ये कैंप मीटिंग 1987 में हुआ, उससे पहले मीटिंग से पहले जो मैंने देखा। द फर्स्ट सच एक्सपीरियंस आई हैड ऑकर्ड इन 1953, और इस प्रकार का पहला अनुभव जो मुझे हुआ वो 1953 में हुआ। 53, आई वॉज प्रेइंग इन द स्पिरिट ऑन अ फ्राइडे नाइट। मैं आत्मा में शुक्रवार की रात प्रार्थना कर रहा था। आई सॉ माई संडे नाइट सर्विस, मैंने अपने रविवार की पूरी सभा देखी। When it came time for the service, Sunday night, जब उस रविवार की रात की सभा का समय आया, I just acted out what I had seen myself do. मैंने सिर्फ उसी तरह किया जो मैंने अपने आप को उस दर्शन में करते हुए देखा था। Marvelous, miraculous things happen in that service. अद्भुत और चमत्कारी चीजें उस सभा में हुई। When I had another experience like that, और इस प्रकार का जब दूसरा अनुभव मुझे हुआ 1954 में, when I was preaching in California at convention for a full gospel denomination, उस समय जब मैं कैलिफोर्निया में कन्वेंशन में एक फुल गॉस्पल डिनोमिनेशन की कन्वेंशन में प्रचार कर रहा था। I had gotten off to sleep one night, एक रात मैं नींद से जाग उठा, but I woke up, मैं सोने चला गया एक रात, but I woke up in the night, और लेकिन रात को मैं उठ गया with a sense of urgency to pray, प्रार्थना करने की क्या बोलते हैं उसको, सेंस। मुझे लगा कि मुझे कोई बहुत ज़रूरी प्रार्थना करनी है। उस आभास से मेरी आत्मा में जो प्रार्थना करने की उत्तेजना आई, उसके कारण मैं उठ गया। आई ले देयर प्रेइंग क्वाइटली इन द स्पिरिट, मैं वहीं पे लेटा हुआ बहुत धीमी आवाज़ में आत्मा में प्रार्थना करता रहा। नॉट डिस्टर्बिंग एनीवन, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। अनटिल अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, जब तक सुबह के 4 ना बज गए। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक ही, आई सॉ माई सर्विस दैट नाइट, मैंने उस रात की अपनी सभा को देखा। अमंग अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों के दौरान भी, दूसरी चीज़ें भी, दूसरी चीज़ों के बीच में आई सॉ अ वुमन हु हैड बीन ब्रॉट इन ऑन अ स्ट्रेचर गेट अप इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एंड वॉक ऑफ एंड हील्ड। मैंने देखा दूसरी चीज़ों के दौरान एक औरत एक स्ट्रेचर पर लाई गई और वह सबके सामने उठी और पूरी तरह चंगा होके चलने लगी, चल के चली गई। When it came time for my service, जब मेरी सभा का समय आया, I just acted out and what I had seen myself do. तब मैंने उसी प्रकार किया जो मैंने अपने आप को करते हुए देखा था। And everything happened just as I had seen it. और सब कुछ उसी प्रकार हुआ जैसा मैंने उसे करते देखा था। A woman was carried into the service on a stretcher. उस औरत को स्ट्रेचर पर लाया गया and she got up and walked off healed. वह उठी और चंगी होकर चल के चली गई। In the 1987 visitation with the Lord, 1987 की मुलाकात में प्रभु यीशु मसीह के साथ,
Jesus told me some things. यीशु मसीह ने मुझे कुछ कहा that he is wanting to do in this day in the church, कि वह इस दिन कलीसिया में क्या करना चाहता है. His plans, अपनी योजनाएं, उसकी योजनाएं, and why he has not been able to do them, और अब तक वह क्यों नहीं कर पाया. वाव, इसका अर्थ है कि प्रभु पहले भी करना चाहता था लेकिन अब तक नहीं कर पाया. Why he has not been able to do them, उन्होंने क्यों नहीं कर पाया, इसलिए उस योजना को इस दिन में कर रहा है. ब्रदर हैगन को बताया. If the body of Christ will cooperate with God, यदि मसीह की देह परमेश्वर के साथ सहयोग करेगी, and get in the line with his plan, और उसकी योजना के साथ बिल्कुल उसी रेखा में आ जाएगी, and his purposes, और उसके उद्देश्यों में आ जाएगी, and pursue, और फिर उनका अनुसरण करेगी, that plan, वह योजना, then God will be able to accomplish, तब परमेश्वर उसको पूरा कर पाएगा, what he wants to do in this day, जो वह इस दिन में करना चाहता है उसे वह कर पाएगा. The body of Christ has been in the shallow water of a new beginning for the last 2 or 3 years. पिछले 2 से 3 साल में, 1987 में वो बात कर रहे थे, 1987 की 200, उसके पीछे पिछले 2 या 3 सालों में मसीह की देह पानी की जो नई शुरुआत है, उस पानी की वो बिल्कुल ऊपरी सतह में ही है, शैलो वाटर, थोड़े पानी में है, गहरे में नहीं है. We are just now moving out into another new beginning. अब हम एक नई शुरुआत की तरफ चलन कर रहे हैं. We are just getting to the place where the Lord can begin to do some of the things. हम सिर्फ अब हम उस स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां परमेश्वर कुछ बातों को करना शुरू किया है. He has wanted to do in this day, जिनको वह इन दिनों में, इस दिन में करना चाहता था, and then this hour, और इस घड़ी में करना चाहता था, उनको उसने अभी करना शुरू ही किया है कुछ चीज़ों को. The things Jesus explained to me in this visitation, जो बातें प्रभु ने इस मुलाकात में मुझे समझाई, were to help get the body of Christ ready for this next great move of God's Spirit upon the earth. वह इसलिए ताकि मसीह की देह जो इस पृथ्वी पर परमेश्वर के आत्मा का चलन होने वाला है, उसके लिए उसको मसीह की देह को तैयार होने के लिए, तैयारी करने के लिए, मदद करने के लिए उसने बताई. ये मदद करेंगी कि मसीह की देह तैयार हो जाए परमेश्वर के अगले चलन के लिए जो धरती पे होगा. The spiritual truths that Jesus shared in this visitation, वह आत्मिक सत्य जो यीशु मसीह ने इस मुलाकात में बांटे, are just simply the springboard, so to speak. वो साधारण रूप से जैसे स्प्रिंग बोर्ड होते हैं वैसे हैं, which will spring the body of Christ into a realm of the supernatural in a way and in a place that we have barely been before. ताकि इससे मसीह की देह जंप करके उस स्थान में पहुंच जाए, उस अलौकिक स्थान में पहुंच जाए जहां पे अभी हम बड़ी मुश्किल से उससे पहले थोड़ा बहुत आए हैं. वाई, क्यों? स्प्रिंग बोर्ड समझते हैं आप, कूद के कोई चीज ऊपर पहुंच जाना, वैसा. बिकॉज वी विल बी फॉलोइंग हिज प्लान्स, क्योंकि हम उसके योजनाओं का पीछा करेंगे, हिज परस्यूज, हिज पर्पसेस, और
उसके मकसदों का, उद्देश्यों का, एंड परस्यूइंग देम, और उनका अनुसरण करेंगे। इन द वेव ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग, परमेश्वर की आशीषों की जो लहर है, दैट इज कमिंग अपॉन द अर्थ, जो धरती पर आ रही है, द थिंग्स दैट हैव बीन मैनिफेस्टेड ओकेशनली, जो चीज़ें कभी कभार प्रगटीकरण में आती थी, विल बिकम कॉमन प्लेस विद द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वह मसीह की देह में बहुत ही सामान्य हो जाएंगी। द हेड ऑफ द चर्च, कलीसिया का सर, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह इज डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ हिज बॉडी इन द वर्ल्ड टुडे। वह अपनी देह को इस संसार में आज उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उसकी जो क्रियाएं हैं, उनको डायरेक्ट कर रहा है। एंड ही विल रिसीव ऑल द प्रेज एंड ऑनर एंड ग्लोरी फॉर इट, और इसके लिए वह सारी स्तुति, आदर और महिमा को ग्रहण करेगा या प्राप्त करेगा। ओह, देयर इज द मूव ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, और वहाँ पे परमेश्वर के आत्मा का चलन है। डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्रों, व्हाट वी कांट जस्ट जंप इनटू इट, हम सिर्फ इस पे कूद नहीं सकते कि चलो कूद जाएं, ऐसा नहीं है। गॉड वांट्स अस टू गेट अस देयर, परमेश्वर चाहता है कि हम वहां पहुंचे, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू फॉलो हिज प्लान्स एंड हिज पर्पसेस एंड परस्यू देम। इसलिए हमें उसकी योजनाओं को और उसके उद्देश्यों को पीछे चलना है और फिर उनको पूरा भी करना है, परस्यू देम। इन दिस विजिटेशन, इस मुलाकात में, जीसस टोल्ड मी, यीशु ने मुझसे कहा, दिस मूव विल बी लॉस्ट अनलेस द पीपल आर टॉट हाउ टू मूव विद माई स्पिरिट। वाओ, यीशु ने मुझसे कहा, यह चलन जो परमेश्वर का है वह खो जाएगा यदि लोगों को ना सिखाया गया कि आत्मा में कैसे चलन करना है। तो मैं फिर से दोहराता हूं, यीशु मसीह ने ब्रदर हैगन से कहा, यह चलन खो जाएगा यदि लोगों को ना सिखाया गया कि आत्मा में कैसे चलना है। There will be some who will read this, कुछ होंगे जो इसको पढ़ेंगे, and be just as lifeless as they ever were, और जैसे वे पहले जीवन के बिना जैसा जीवन था, लाइफलेस लाइफ थी, वैसे ही रहेंगे। Others will say, दूसरे ऐसा कहेंगे, is not that marvelous, क्या यह अद्भुत नहीं है? And do nothing to follow after God's plan, purposes and pursuits for their lives, और फिर परमेश्वर की योजना, उद्देश्य और उसके अनुसरण जो उसके उनके जीवन के लिए, उसके विषय में कुछ नहीं करेंगे उसको करने के लिए। वे कहेंगे बढ़िया है, पर करेंगे कुछ नहीं। कुछ पढ़ेंगे पर जैसे उनको कोई असर ही नहीं होता, जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। पर कुछ कहेंगे बढ़िया है, अद्भुत है, पर परमेश्वर की योजना, उद्देश्य और उसका अनुसरण जो उनके जीवनों के लिए उसके विषय में कुछ नहीं करेंगे। बट देयर विल बी दोज पीपल, पर यहाँ वहाँ पे वो लोग भी होंगे, हु विल कैच ऑन, जो इसे पकड़ लेंगे, एंड टेक होल्ड ऑफ व्हाट द लॉर्ड इज ट्राइंग टू गेट अक्रॉस टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इन दिस आवर। और जो प्रभु अब मसीह की देह को इस घड़ी में कहना चाहता है, उसको समझाना चाहता है, उसको पकड़ लेंगे, एंड गेट गॉड्स प्लान फॉर देयर लाइव्स, और अपने जीवनों के लिए परमेश्वर की योजना को पालेंगे, एंड फॉलो आफ्टर दैट, और उसके पीछे चलेंगे। दोज हु डू, जो ऐसा करेंगे, विल बी रेडी फॉर द मूव दैट गॉड इज वांटिंग टू ब्रिंग अपॉन द अर्थ इन दिस डे। तब वह जो चलन परमेश्वर इस धरती पर इस दिन में लाना चाहता है, उसके लिए वह तैयार रहेंगे।
The body of Christ has seen anything like what we will see when we get into that place where we have God's plan and purposes. मसीह की देह ने अभी तक वैसा कुछ नहीं देखा है जो हम, जहां परमेश्वर की योजना और उद्देश्य वहां पहुंचने के बाद देखेंगे. Not only for our own lives, केवल हमारे अपने ही जीवनों के लिए नहीं, but also for the church, पर कलीसिया के लिए भी. And we are pursuing that plan. और हम उस योजना का पीछा कर रहे हैं. आमीन. और अब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की योजनाओं के लिए. आप अगर ऑनलाइन है तो ये प्रार्थना हमारे साथ कर सकते हैं. धन्यवाद पिता, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में हमारी नहीं बल्कि तेरी योजनाएं पूरी हों. जो लोग सुन रहे हैं प्रभु, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि इस बात पर ध्यान दें कि वे अपने जीवन में, इस संसार में अपनी योजनाएं पूरी करने के लिए नहीं, वे इसलिए नहीं चुनेंगे कि वे अपनी योजनाएं पूरी करें, पर इसलिए चुनेंगे कि तेरी योजनाएं पूरी करें. पिता, हम सब प्रार्थना करते हैं अपने लिए भी और उनके लिए भी जो सुन रहे हैं कि तू हमें अपनी योजनाएं दे. और पिता, हमारी यह भी प्रार्थना है कि हमारी उस योजना को पूरा करने का उद्देश्य भी सही हो, उद्देश्य गलत ना हो प्रभु जी. और हम उनका अनुसरण भी करें, सिर्फ उद्देश्य ही नहीं बल्कि उनका सही पीछा भी करें प्रभु. उनके पीछे भी चलें, उनको पूरा भी करें, उसमें ऐड ऑन ना करें प्रभु जी, जो हम बहुत बार ऐड ऑन करते हैं. हम अपनी योजनाओं को जोड़ देते हैं तेरी योजना. तूने हमें कुछ करने के लिए कहा है, हम उसमें 10 बातें और जोड़ देते हैं. उसके लिए हमें क्षमा कर, माफ़ कर पिताजी, क्षमा कर. इसीलिए हम भुगतते हैं बहुत सी बात, इसीलिए हम कई बार पैसे के कमियों में आ जाते हैं प्रभु जी, समस्याओं में आ जाते हैं. उसके लिए हमें क्षमा कर पिता, क्षमा कर, क्योंकि तू मनुष्यों की योजनाओं पे आशीष नहीं दे सकता है. तो सिर्फ परमेश्वर जो तेरी योजना है उन पे आशीष देता है. इसलिए पिता हम प्रार्थना करते हैं, हम सब पर अनुग्रह कर, कृपा कर, हमें उस भटकने वाले रास्ते से मोड़ ले पिता. ओ तू हमारी अगुवाई कर, तू हमारी अगुवाई कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तू हमें हरी हरी चराइयों में ले जा. तेरा प्लान हमें हरी चराइयों में ले जाना है, सुखदाई झरने के पास ले जाना है प्रभु जी. हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करता है. पिता तू हमारी अगुवाई कर. तूने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं. तूने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूँ. पिता हमें मदद कर, हमारी आत्माओं की धार को तेज कर, हमारी आत्मा के कानों को सचेत कर, उनको साफ करके हम अच्छी रीति से तेरी आवाज़ को सुन सकें और तेरी योजनाओं को सुन सकें और उनके अनुसार चल सकें प्रभु जी, ताकि हम असर कर सकें तेरे आत्मा के चलन को हमारी जीवनों में, ताकि तेरे आत्मा का बड़ा चलन हो हमारी सेवकाइयों में, तेरे आत्मा का बड़ा चलन हो जिसे हम नहीं देख पाते उसे देख पाएं प्रभु जी. धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद 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 करते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन आमीन. ओके, ये